Hi friends, welcome back. US ramps up crackdown, reviews all 55 million वीज़ा होल्डर्स। ओह भाई, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। If you're planning to visit the US anytime soon, our next story is for you. Because Donald Trump's immigration crackdown just went into overdrive. The Trump administration has made an announcement. It is reviewing more than 55 million visa holders. That's everyone who holds a visa, 55 million. It could be to enter, to work, or to live in the US, any kind of visa. US officials are reviewing their records. And you can guess why. They're looking for potential violations. Again, it could be anything from staying past visa time frame to criminal activity to whatever the US deems a threat to public safety. बहुत अच्छी बात है ये तो। मैं तो बहुत खुश हूँ। इसमें कोई नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अपने देश के लिए। ओवर स्टे क्यों करो? जो तुमको जितने टाइम तक रहने को बोला है उसी हिसाब से रहो और उसके बाद जाओ। क्रिमिनल एक्टिविटी है तो कोई क्रिमिनल को अपने देश में क्यों आने देगा? तो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग। वेरी गुड, बल्कि हाई टाइम ये किया जाए। If any of these indicators are found, the visa holder will be deported. Good. It's a major move and hardly the only one of its kind. Here's a report. We will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Since U.S. President Donald Trump came to power, he has launched a war on foreigners on the American soil. अगर इसके लिए लोग खड़े होके प्रोटेस्ट करें तो सोच लो वो कौन हो सकते हैं जिन्होंने इलीगल काम किए हैं। उन्हीं का होगा ना। उनको डर है कि भैया हमें निकाल देंगे, तो उसी से पता चल रहा है। इतना अच्छा, बल्कि मैं तो कहूँगी इंडिया को भी ऐसे करना चाहिए। स्ट्रिक्टली एक एक बंदे को देखना चाहिए कौन इलीगल है, कौन ओवरस्टे कर रहे हैं और क्या डेमोग्राफी चेंज करने के लिए आके जो है सेटल हो रहे हैं। Focused on stricter requirements for visa applicants, deportation of illegal migrants, or student and visitor exchange visa holders. Since his inauguration, the State Department has revoked more than twice as many visas as during the same time period last year. But now, his crackdown just hit the accelerator. The Trump administration is now reviewing the records of all U.S. visa holders. There are more than 55 million of them, including about 13 million green card holders, about 4 million people on temporary visas, and many others with multiple entry tourist visas. Their records are being vetted. Why is that? Because the Trump administration wants to sift out any possible violation, like staying past the authorized time frame, any record of criminal activity, threats to public safety. If any such information is found, the visa will be revoked. And if the visa holder is in the U.S., they will be deported. The U.S. says that this will be a continuous vetting process. Apparently, the reviews will include new tools for data collection on the past, present, and future visa applicants. With privacy switches on smartphones turned off, while the holder's social media accounts, law enforcement, and immigration records are scoured through. इसमें एक और बढ़िया बात है, मैंने ये भी पढ़ा था कि सोशल मीडिया में ये भी देखेंगे कौन एंटी यूएसए सेंटिमेंट्स हैं। तो जैसे उसी टाइम मेरे दिमाग में क्या आया, ये जो बिल्कुल यूट्यूब में बैठ के यूट्यूबर्स पैसों के लालच में कुछ भी बोलते जाते हैं, अपने आप को जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बोलते हैं, तो भैया तुम उन लोगों के लिए तो टोटली आउट है। तो वो आ नहीं सकते। और कई तो इतनी हद कर रहे हैं बोलने में कि उन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दी है। उनको यही नहीं पता चल रहा कि ठीक है, जब तुम ऐसी बातें पाकिस्तान के बारे में बोलते हो जो तुमसे नीची कंट्री है, तो भी वो कोई सुनता है तो चलो मजाक में और जो है इग्नोर करके हंस लेगा। पर जब तुम इंडिया से ऊपर जो हैं आगे की कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर इस तरह से बोलोगे तो कोई भी समझदार इंसान बोलेगा कि तुम बोल क्या रहे हो। बड़ी बेसिक या तुमको वो तो ऐसे सेम हुआ कि कोई छोटी सी कंट्री इंडिया के बारे में कुछ बोल रही हो। जैसे पाकिस्तान कुछ बोलता है तो हम हंसते हैं ना कि भैया तुम कहाँ हो, तुम तो नीचे जा रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। तो वैसे ही जो है अब मेच्योरिटी दिखानी चाहिए, यूट्यूबर्स को दिखाना चाहिए कि हम पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि भैया बस कुछ भी बोलने के लिए व्यूज़ के लिए हम बोल देंगे। थोड़ा समझदारी रखो, थोड़ी मेच्योरिटी रखो। पर फिर भी
उनको भी अब ये पता चल जाना चाहिए कि भैया थोड़ा सा ध्यान से बोलो। पहले तो तुम यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो जो कि एक अमेरिकन है, और उसका जो आप लोग काउंटर देने की कोशिश करते हो कि पैसे देते हैं जी, फोकट में थोड़ी कोई यूज़ करते हैं। तो भैया यूज़ तो कर रहे हो, और पैसे दे के क्यों कर रहे हो? क्योंकि खुद के पास कुछ नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम कि पैसे दे के कर रहे हो, बल्कि उससे यही दिखता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी मजबूरी है, हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। और यूट्यूब को मजबूरी नहीं है कि भैया तुम किसी एक कंट्री से बड़े उसको पैसे मिल रहे हैं, वो कहेगा यार तुम नहीं, कोई और कंट्री से, वो इतना कमा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो यूट्यूब में बैठकर यूट्यूब के ऊपर ही, यूट्यूब जो अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, इतना देखो कुछ हद तक यस कि एज इंडियन बुरा लगता है, गलत लगता है, तो अपना व्यू पॉइंट देते हैं, पर वो व्यू पॉइंट एक मेच्योर वे से दो तो भी समझ में आता है। हर चीज़ को बड़ा चढ़ा के ऐसे दिखाना क्या कि उसने क्या, ट्रम्प ने यू टर्न ले लिया है, शेमलेस यू टर्न, पता नहीं। आज मेरे को एक रिक्वेस्ट आई है, एक सेकंड रुको, मैं रिक्वेस्ट बताती हूँ कौन सी थी। उसका तो टाइटल ही सुनकर मैंने कहा भैया मैं तो ऐसी वीडियो अब करने नहीं वाली हूँ जिसमें इतना कोई, एंड दीज आर पीपल जिनको हम सोचते थे कि दे आर एजुकेटेड, दे मेच्योर होंगे, और बातें जो है ये जो है सोच समझ के बातें करेंगे। चलो कभी आप इस तरह से कर लो तो भी समझ में आता है, पर बार बार हर वीडियो में व्यूज के लिए। अभी जो मुझे रिक्वेस्ट आई वो थी ट्रम्प्स शेमफुल यू टर्न इन द रशियन यूक्रेन वॉर। अब मैं नाम नहीं लूंगी किसने, ये किसका वीडियो है, क्या है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है भैया। शेमफुल यू टर्न, कोई पढ़ा लिखा इसको सुन के बोलेगा क्या बात कर रहे हो, किस एंगल से शेमफुल यू टर्न, क्या कर दिया उसने। और उसके बाद आप जब वीडियो देखोगे तो मोस्ट लाइकली उसमें इतना इस टाइप की चीज़ें बोली जा रही होंगी कि भड़काने के लिए और ऐसे दिखाने के लिए कि भैया इंडिया तो बहुत महान है और यूएसए तो पता नहीं क्या हो गया है, मतलब आई एम श्योर होगा। तो ऐसे लोगों को तो अब यूएसए में एंट्री मिलने से रही। और फिर उसके बाद जो कमेंट्स करते हैं कचरा, उसमें भड़क के और लॉजिक नहीं यूज़ करते, तो उनके भी जो कमेंट्स होंगे ना, अगर कभी आना हुआ फ्यूचर में अपनी करियर से रिलेटेड या अपने जॉब से रिलेटेड, अपने फ्यूचर एजुकेशन के से रिलेटेड, तो उनको भी इस तरह से चेक करके उनको भी टाटा बाय बाय हो जाएगी। तो जो भी आप लोग अब बोलते हो बड़ा सोच समझ के बोलना, क्योंकि वो तो लोग पैसों के लिए बोल गए, पैसे कमा के चल दिए, नेक्स्ट वीडियो ढूंढेंगे मसाले वाली। फंसेंगे भी वो लोग जो बेचारे एक्चुअल देशभक्त है, इंडिया से प्यार करते हैं और उनकी ऐसी बातों के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मिर्च मसाला लगा के बोलना है। तो यही बात है कि अब यूट्यूब, शूट्यूब और ये सोशल मीडिया में भी सोच के ही बोला करो। There's anxiety and fear. People are even afraid to go to school or work for fear of being raided and arrested. तो तुम लीगल हो तभी यू आर फेयरिंग, वही तो आई क्यों हो, करेक्ट, गलत करके करके आई क्यों, लीगल वैसे आए होते तो क्यों तुम फेयर करते। और तुमने सब मतलब या तो तुमने कुछ ऐसा गलत काम किया है या तुम इलीगली आए हो या तुम ओवरस्टे कर रहे हो, तो फिर वो तो होना ही है। And this is part of a much larger drive. Secretary of State Marco Rubio has said that the U.S. will also stop issuing worker visas for commercial truck drivers. Ooh. This comes after last week's incident, when an Indian origin truck driver was charged with killing 3 people on a highway in Florida while making an illegal U-turn. Previously, the administration also enforced stricter English proficiency requirements on truck drivers. Good. Earlier this week, the State Department said that since Trump returned to the White House, it has revoked more than 6,000 student visas. This is mainly for overstays and violations of the law, from assault to driving under the influence of alcohol or drugs. While these moves have sent shockwaves through the country, the Trump administration is not stopping here. On the ground, ICE, or the Immigration and Customs Enforcement, is boosting operations. It is adding a new wave of agents. I'm very happy the fact that we are having so many applicants and they're not being deterred by what they kind of see going on out there. Kind of see a lot of the great arrests that we've been doing lately. I think people want to make a difference. But many of these additions will be civilians. The Pentagon is recruiting civilian employees to join a so-called volunteer force to aid ICE deportations. Ooh. Selected employees will join the campaign. They will offer support to the operations, with duties like data entry,
planning support, processing, and logistical support. People will not get to choose where they are deployed. Critics fear that this could spur a wave of deportation vigilantes. But Trump remains undeterred. He has set his eyes on one goal: securing the borders. The chaos that comes with it is simply collateral damage. कमाल ही कर रहा है ट्रम्प। जो जो उसने बोला है वो सब कर रहा है। और कंट्री के अंदर जो इतने इलीगल आए हुए हैं, खासकर जो क्रिमिनल एक्टिविटी में हैं, उन सब को वो कह रहा है कि तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि ऑब्वियसली वही गंद मचा रहे हैं देश के अंदर, यूएसए तो में आप और किसी के इंडिया देश को में भी ऐसे वीजा करना में चाहिए। और आप क्राइम कर रहे हैं, आप कहीं पर भी हर देश में ऐसे होना क्या चाहिए। कहूँ मैं, कॉमन सेंस वाली बात है। आप किसी और देश में गए वीजा पे और वहाँ जाके अगर आप क्राइम करते हैं, कौन तो देश ही रखेगा? बोलेगा वापस जाइए, या फिर वापस ही नहीं आते। हाँ। या आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने के लिए गए, आप प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनकी पढ़ाइयों में या आपके ख्यालात बहुत ही एंटी अमेरिका हैं अपने देश में, मगर आपको अपॉर्चुनिटी देते तो भाग के आना चाहते हैं, फिर वो बोलते हैं नहीं आप तो एंटी अमेरिका, नहीं आ पाएंगे। एक इंडियन था ना स्टूडेंट, लड़की थी मेरे ख्याल से, जो आई थी और उसने पूरा पैलेस्टीन के साथ करके, मेरे ख्याल से उस पता नहीं कौन से कॉलेज की थी, कोलंबिया की थी, कहाँ की थी, इतना उसने किया था। उसके बाद उसको डिपोर्ट किया, तो वो स्मार्ट कितनी थी, डिपोर्ट होके वापस इंडिया नहीं गई, कनाडा भाग गई कि उसके बाद फिर से मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। तो इस मेंटालिटी के लोगों को कौन रखेगा देश में? पढ़ने आयो, भी ग्रेटफुल, पढ़ाई करो, अपनी ज़िंदगी बनाओ, ये सब गंद क्यों मचा रहे हो किसी और के देश में आकर? तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैं तो कहूँगी कि इंडिया में भी ऐसे ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इन्होंने तो बल्कि कह रहे हैं कि आइस के जो एजेंट्स हैं उनको और ले रहे हैं, वॉलंटरी लोगों को भी जो करना चाहते हैं उसका भी कोई ग्रुप बना के जो आइस को हेल्प करेगा वो कर रहे हैं। कमाल ये है। सो देख लो, ट्रम्प तो अपने देश को सेव करने की कोशिश में है कि भैया क्लीन अप करो और कंट्री को सेव करो। तो चलो आप भी शेयर करना। और वही अगेन कि ये सब यूट्यूबर्स के भड़कावे में आके जो भड़केली बातें करते रहते हैं इतनी, सिर्फ व्यूज़ के लिए। आज उनको ये मौका मिला है कि ये टॉपिक पे तो लग गए उसमें मिर्च मसाला लगाने, कल को फिर कोई एक टॉपिक ये जैसी ठंडा होने लगेगा व्यूज़ कम होने लग गए हैं, अभी व्यूज़ आ रहे हैं तो करते जाएंगे। उसके बाद जब लगेगा कि अरे लोग बोर हो गए हैं तो नया टॉपिक ढूंढेंगे मिर्च मसाले वाला, उनका तो ये धंधा है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।